Welcome everyone. Can you all hear me? वालेकुम अस्सलाम मैम। Okay, great. ठीक है, so क्या हाल है सबका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक ठाक से। We are fine. I'm also fine. Good. Right, so let me share my screen. Before we start, so just little intro because कल हो सकता है किसी student ने ना class दी हो. So I'm Myra and I'll be your English trainer. Okay, and this is going to be very fruitful session for you guys. So just be connected and मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि सेशन को हम किस तरह से लेकर चलेंगे. So we will be covering reading first and then we will be moving on to writing. Okay, and I want कि आप लोग अपने क्या mic off रखें until and unless you have to say something. Okay, and you can raise your hand at any point. अगर कहीं पर भी समझ नहीं आती तो मुझे ज़रूर बताएं and then I'll answer your query. Okay. So yesterday I took your guys introduction. I gave my introduction. So I want कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को introduce कर दें. कुछ students को मैं जानती हूँ, but some of them I don't know. So I want कि आप chat box में अपनी थोड़ी सी introduction मुझे बता दें कि like are you giving LCAT or a city and like where are you from? Okay, so just take 2 minutes and type your text in the chat box. Something interesting about you or anything that you want to share. Okay. So, what is the pronunciation of your name? Uh, the one who is from Amarkot. Yeah, okay. Rehber, I know you. And Zara LCAT दे रही हैं, ठीक है. और Jamshed, he is giving LCAT and from Rajanpur. Okay, great. और Jay Kumar, my name is Jay Kumar and from Sindh. Okay, great. LCAT. Anyone from you guys who is going to take SAT? I think Zulfikar, he's saying कि दोनों वो दे रहे हैं, right? Okay, Naeem Abbas is also giving digital SAT, right? So we have, I think, 2 to 3 students who are giving SAT and rest of them are giving LCAT, right? ठीक है, so अगर आप LCAT दे रहे हैं या digital SAT दे रहे हैं, so the first thing that you need to know is that we are learning English. Reading, writing दोनों हम सीखेंगे. आप बेशक LCAT दें या आप डिजिटल एसएटी दें, ठीक है. सो हमने बेसिक लर्न करनी है. अगर वो आप कर लेंगे तो दोनों टेस्ट आप दे सकते हैं, बिलीव मी. ओके, मैंने भी इसी तरह किया था और इसी तरह से मैं भी आपको बताऊंगी. ओके, राइट. सो इन इंग्लिश सेक्शन वी हैव 2 मॉड्यूल्स. एक हमारा रीडिंग होगा और एक राइटिंग होगा. आज हम बेसिकली किस पे concentrate करेंगे. So I'll be giving you an overview of reading section, some tips for acing reading section, and then we will move on to practice questions. Okay? And are you guys excited for the session or not? और अगर excited है, ठीक है. अगर excited है तो एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप लोग काम करेंगे या नहीं. Like, will you do homeworks, give tests, take classes or not? Because I want consent of all of you. Because अगर ये आप मुझे देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग excited हैं और नहीं है. Okay, Zulfikar Singh. Yes, ma'am. Jamshed. Well, okay. Yes, ma'am. We are highly excited. Okay, great. Excited भी हैं और काम भी करेंगे, right? ठीक है, ये मैं आप लोगों का एक रिकॉर्ड रख लेती हूँ कि कौन कौन कह रहा है कि हम करेंगे और लास्ट तक वो रहते हैं ऐसे या नहीं. ओके,
So everyone is excited and they will work. ठीक है, great. अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने माइंड में से ये चीज़ निकालनी कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ठीक है? इंग्लिश इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. सो जस्ट बी कॉशियस ऑन दिस थिंग, ठीक है? अच्छा, सैट रीडिंग में आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए? लेट्स लुक एट दिस. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द पैसेज एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आपको पता है कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है, ये जो इंग्लिश है वो क्या बता रही है आपको, ठीक है? अगर आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन पता चल रहा है कि क्या वो पूछ रहा है, तो सैट रीडिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आपको टैक्टिक्स आनी चाहिए, टिप्स आनी चाहिए और फिर हम देखेंगे कि आप एक्यूरेसी किस तरह से रीच करें. अगर आप ये फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लेते हैं ना, तो एक्यूरेसी आपकी ऑटोमैटिकली अचीव हो जाएगी और फिर हम देखेंगे कि पेस और टाइम को किस तरह से मैनेज करना है. ओके? सो द फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सेकंड वन, टैक्टिक्स आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन करने के. फिर आपने देखना है कि एक्यूरेसी आपकी रीच हो रही है या नहीं हो रही और फिर हम लास्ट पे फॉलो करेंगे टाइम को. ओके? अच्छा, मैंने यहाँ पर बोल्ड में एक चीज़ लिखी हुई है, दिस वन. व्हाट इज़ दिस? लर्न वोकैब्युलरी, रीड एंड प्रैक्टिस एवरी डे. सो वोकैब्युलरी के क्वेश्चंस आपको एज सच नहीं मिलेंगे. लाइक ये नहीं होगा कि एक वर्ड है उसका मीनिंग आपने बताना है, नो. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पहले आते थे. 2016 से पहले जो एसएटी था उसमें आते थे, ठीक है? बट नॉट नाउ. बट अगेन आई विल एम्फसाइज कि आप लोग वोकैब्युलरी को लर्न करें. ओके, सो मेक अ हैबिट. आज से ही आप लोगों ने ये हैबिट बनानी है कि यू हैव टू लर्न 10 वर्ड्स एवरी डे. अगर 10 नहीं तो 7 to 8 वर्ड्स आप लोग ज़रूर करें. ओके? और उस तरह से क्रैम नहीं करना कि आप बस क्रैम करते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही पुरानी चीज़ों की. नो, जस्ट लर्न एवरीथिंग. उनके सेंटेंसेस देखें, वोकैब्युलरी को लर्न करें, ठीक है? मेक इट अ हैबिट. उसके बाद रीडिंग करनी है आपने. वैसे रीडिंग किसको पसंद है और किसको नहीं पसंद? जिसको दिल चाहता है कि मैं रीड करता रहूँ, करती रहूँ, और कौन कहता है कि नहीं, रीड नहीं करना कुछ? बताएं मुझे, चैट बॉक्स में बताएं. जी अब्दुल्ला, आपको पसंद है रीडिंग? रहबर अली, पसंद है रीडिंग? हैंड रेज अगर आप कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि पसंद है, राइट? अच्छा, जिनको नहीं पसंद वो मुझे चैट बॉक्स में बताएं. रीडिंग स्टोरीज, ठीक है? स्टोरीज भी आप अगर देख रहे हैं, लाइक उसको रीड कर रहे हैं, सो इट्स गुड. और इंग्लिश में सारी चीज़ें, ठीक है? उर्दू की रीडिंग नहीं अभी मैं देख रही. नॉन फिक्शन मुझे पसंद नहीं है, जुल्फ़कार. ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? वज़ीर, ज़ारा? रीडिंग स्टोरीज, ठीक है. साइंटिफिक, ओके, ग्रेट. ठीक है, सो अगर आप लोग रीड पहले से कर रहे हैं, सो वेल एंड गुड. अगर रीड नहीं कर रहे तो स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. ओके, आज से ही आपने उसको स्टार्ट कर देना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेजेस भी हो, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हम देखते हैं कि आप जो लोग कह रहे हैं कि हम स्टोरीज पढ़ते हैं, कोई कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक पढ़ते हैं, सो इट्स गुड. बिकॉज आपके ये जो सारी टॉपिक्स हैं ये आपके एसएटी में या कैट में टेस्ट हो सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट जॉनरा ऑन विच यू कैन बी टेस्टेड इज फिक्शन. फिक्शन क्या होती है? स्टोरीज होती हैं, पोइट्री होती है, ठीक है? तो उन पे अगर क्वेश्चंस आएंगे, उन पे पैसेजेस आएंगे, आप उसको इजीली कर सकेंगे. ह्यूमैनिटीज़ मतलब म्यूज़िक, लिटरेचर, आर्ट, इन पे अगर आएँगे क्वेश्चंस तो वो भी आप कर सकेंगे, ठीक है? सोशल साइंस, इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजी पे, पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री पे, ये सोशल साइंस में. फिर नेचुरल साइंस इट इज़ रिलेटेड टू द नेचर, फिज़िक्स, बायो, ठीक है? इस तरह की चीज़ें. तो अगर आप लोग रीड करें आउट ऑफ दीज़ जॉनरास, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अगर रीडिंग अपनी स्टार्ट करें तो ये वाले टॉपिक्स को माइंड में रखें और फिर आप रीड करें
इन टॉपिक्स को देखते हुए. ओके, सो कीप इन माइंड दीज टॉपिक्स. ठीक है, सो अगर आप रीड कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को माइंड में रखें और उस तरह की चीज़ें पढ़ें. स्टोरीज पढ़ लें, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ लें, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, बिकॉज दे विल इवेंचुअली हेल्प यू ऑन LCAT एंड SCT. कहीं पर क्लियर नहीं होता कुछ तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. Okay, so read this slide and give me 1 minute and just read this one. Okay, सब read करें and then I ask कि आपने क्या समझा इसमें. Okay, are you guys done? So let's see this. So what is this Kaplan method for reading? इसमें आपको 3 very simple steps बताए हुए हैं. So what are they? First one is कि आपने जब भी पढ़ना है तो आपने एक्टिवली पढ़ना है. ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं तो आप उसको रीड कर रहे हैं, लाइक यू आर रीडिंग इट ट्वाइस थ्राइस. इस तरह से नहीं करना. अभी ये ऐसा टाइम है जब आप उसको पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपने एक्टिवली उसको रीड करना है. ये ना हो कि आप उसको रीड करते रहें. ओके, देन आपने जब क्वेश्चंस को देखना है, जो क्वेश्चंस होंगे आपके, उनको आपने एग्जामिन करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पैसेज का कौन सा पार्ट वो पूछ रहा है. ठीक है, और थर्ड स्टेप है कि आप हमेशा अपना आंसर प्रिडिक्ट करें कि क्या आंसर इसका हो सकता है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस. ठीक है, जब आप ऑप्शंस देख लेते हैं तो आप बायस्ड हो जाते हैं, फिर आप कोई भी चूज कर लेते हैं. तो बेहतर ये होता है कि हम प्रिडिक्ट करें आंसर कि आंसर क्या हो सकता है और फिर उसको अपनी पॉसिबिलिटी के साथ मैच करें विद द ऑप्शंस. गॉट इट? तो जब आपको मैं प्रैक्टिस दूंगी फ्रॉम टुडे, सो ये 3 स्टेप्स आपने जरूर अप्लाई करने हैं. फर्स्ट, रीड एक्टिवली. सेकंड, एग्जामिन द क्वेश्चन स्टेम कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन. अ थर्ड वन इज you have to predict the answer and then match with the available options. Okay? अच्छा, जब आप रीड कर रहे हैं तो आपने ये स्टेप्स जरूर फॉलो करने हैं. पहला देखें, वाई. जो भी पैसेज आप पढ़ रहे हैं आपने देखना है कि क्यों लिखा हुआ है वो. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज और द पैराग्राफ. ठीक है, उसका पर्पस क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं ऑथर. एंड देन यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग विद द सेंट्रल आइडिया. सो फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो आपने सेंट्रल आइडिया को एग्जामिन करना है कि सेंट्रल आइडिया क्या है ऑफ द पैसेज. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, to know that what is the central idea of the passage or the paragraph. ठीक है, बस ये आप तीनों पॉइंट्स याद रखें. फर्स्ट 3, सेकंड 1 को रहने दें, थर्ड सॉरी लास्ट 2 उसको. तो फर्स्ट 1, सेंट्रल आइडिया देखेंगे, कनेक्ट करेंगे हर चीज को सेंट्रल आइडिया के साथ. ओके, नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो कौन से टाइप है, बिकॉज जब आपको पता होगा कि टाइप क्या है क्वेश्चन की, सो जो हमने स्ट्रैटेजीज लर्न की होंगी फॉर ऑल द टाइप्स, यू विल बी एबल टू अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, अब टाइप्स देखें. पहली टाइप क्या है, वोकेबलरी क्वेश्चंस. सेकंड वन क्या है, बिग पिक्चर क्वेश्चंस. थर्ड वन इज इंफोग्राफिक्स. देन टेक्स्ट कंप्लीशन, function questions, evidence-based questions, and supporting and undermining and paired passages. So ये आपकी कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चंस की. अब मैं आपको आज के लेक्चर में ये 4 टाइप्स करवाऊंगी ये वाली.
वोकेबलरी से लेकर टेक्स्ट कंप्लीशन तक, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे 4 का। ओके, सो इफ वी मूव ऑन टू वोकेबलरी क्वेश्चंस, वोकेबलरी के क्वेश्चंस इस तरह से नहीं होंगे कि आपको वो वर्ड दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग बताएं। नो, रिमेंबर दिस कि आपने हमेशा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना है, ठीक है। सो राइट दिस थिंग इन योर नोट्स दैट यू हैव टू सी द contextual meaning of the word. Okay, so context आपको clues देगा कि इस word का meaning क्या है। If we move on to big picture question, जो कि main idea questions होते हैं, so remember this कि इनके आंसर जो होंगे वो vague होंगे, मतलब broad होंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ग्राफिक क्वेश्चंस। ग्राफिक क्वेश्चंस में ये होता है कि वो आपकी एबिलिटी देखते हैं कि आप ग्राफ को किस तरह से रीड कर सकते हैं। सो इसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से करेंगे। फिर लास्ट पे आता है टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चंस। टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चंस में ये होता है कि यू हैव टू रीड अ टेक्स्ट, ठीक है। रीड करके आपने लास्ट में बताना होता है कि जो कंक्लूजन है, मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पर कौन सी फिट इन होगी। Okay, again you refer back to the main idea of the paragraph. Okay, so main idea is very important. आप बेशक novels पढ़ रहे हैं, आप कोई article पढ़ रहे हैं, हमेशा देखा करें कि main idea क्या है question का, sorry, passage का। Okay, अगर आपको main idea समझ आ जाता है तो questions भी हो जाएंगे। Any confusion, anyone? कोई भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में पूछ लें, अदरवाइज यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक। क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दें क्लियर। जी जय कुमार। मैम ये टेक्स्ट कंप्लीशन का जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसका थोड़ा हमें बताएं कि ये थोड़ा हमें जी जी, वो मैं आपको बताऊंगी। जस्ट गिव मी सम मिनट्स, हम इस पे आएंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप्स के। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो 2 क्लियर आए हैं मेरे पास, अब्दुल्ला का और 2023। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर, ओके। मैम एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें मतलब ऐसे बोला जाता है कि आप मतलब एक एक क्वेश्चन ऊपर होता है जिसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको मतलब हमें आंसर देना होता है, और दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से आपको मतलब आंसर देना होता है, उसको मतलब किस तरीके से होगा? अच्छा, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम पेयर्ड क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं, ठीक है। जी जी मैम। ओके, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप। सो द फर्स्ट टाइप इज ऑफ वोकेबलरी। अब वोकेबलरी के क्वेश्चंस करने के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। दीज आर द स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज कि आपने हमेशा कॉन्टेक्चुअल क्लूज या सिनोनिम्स देखते हैं उस पैराग्राफ में या उस लाइन में या सराउंडिंग सेंटेंसेस में। मोस्ट लाइकली यू विल गेट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जिसका वो मीनिंग पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सो कॉन्टेक्चुअल क्लूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज कि आप लाइन को पढ़ें जिसमें वो वर्ड है और फिर खुद से प्रिडिक्ट करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है वर्ड का। ओके, थर्ड वन इज कि आप पॉजिटिव नेगेटिव प्ले करें। मतलब ये कि अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सारा के बारे में, ठीक है। अब सारा की सारी जो चीज़ें मेंशन है पैराग्राफ में वो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, ठीक है। उसकी आपको उन्होंने अच्छी बातें बताई हुई हैं पैराग्राफ में। सो जो वर्ड है, कोई भी वर्ड वहां पर यूज हो रहा है तो इट इज हाईली अनलाइकली कि यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो नेगेटिव कॉनोटेशन का होगा।
ठीक है? सो अगर सारा की बात सारी पॉजिटिव हो रही है पैराग्राफ में, तो इट्स मोर लाइकली कि आपका जो वर्ड है वो भी पॉजिटिव कॉनोटेशन ही देगा, पॉजिटिव मीनिंग ही कन्वे करेगा। ओके? सो यूज दिस स्ट्रैटेजी एज वेल। एंड द लास्ट वन इज यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है? POE स्टैंड्स फॉर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे मैं एनोटेट भी कर देती हूँ इन केस। कॉनोटेशन, सो कॉनोटेशन का मतलब होता है कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, सो दिस इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप किस तरह से करते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि वर्ड कॉन्टेक्चुअली सेंस नहीं बना रहा, तो उसको जस्ट क्रॉस कर दें। ठीक है? सेकंड को देखें, अगर वो भी नहीं बना रहा, उसको भी क्रॉस कर दें। अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है। अगर आप उसको रहने देंगे और आप सोचेंगे नहीं, फर्स्ट मुझे लग रहा है, सेकंड मुझे लग रहा है, थर्ड लग रहा है, फोर्थ लग रहा है, फिर लास्ट पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड क्लूज सो दैट यू कैन गेट rid ऑफ द ऑप्शन विच इज नॉट मेकिंग सेंस। गॉट इट? सो ये 4 स्ट्रैटेजीज क्लियर है सबको? और ये वाली स्ट्रैटेजीज, ये नहीं कि आपने सारी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, नो, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, बिकॉज जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे यू कैन यूज एनी ऑफ देम, और फिर भी आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ओके, प्रैक्टिस जो मैं आपको दे रही हूँ उसमें आप ट्राई करें कि हर स्ट्रैटेजीज को यूज करें और फिर देखें कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस क्वेश्चन पे फिट इन हो रही है। ठीक है जी? अहमद, क्वेश्चन? और जय कुमार, यू हैव अ क्वेश्चन? यस मैम, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो क्वेश्चन एलिमिनेशन बताया है ना, उसमें वो हम्म टाइम टेकिंग नहीं है कि हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि ये सूट कर रहा है नहीं, ये सूट कर रहा है नहीं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो हम उसको किस तरीके से मतलब फेस करेंगे हम्म प्रोसेस एलिमिनेशन को। ओके, गुड क्वेश्चन। सो आप देखें कि अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज नहीं करते ना, तो उसमें ये होगा कि उसके बगैर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। कैसे? बिकॉज हर ऑप्शन को अगर आप नहीं देख रहे तो हो सकता है आपके चांसेस ऑफ एरर ज्यादा हो जाए। ठीक है? इसी वजह से मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगी, बेशक मैथ्स हो या इंग्लिश हो, हमेशा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करें। उससे ये होता है कि आप सर्टन होते हैं दैट योर आंसर इज करेक्ट, बिकॉज इन द एंड वी आर ओनली कंसर्न विद द एक्यूरेसी। टाइम भी होगा लेकिन स्टार्ट में आपने एक्यूरेसी को हिट करना है। ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कैन हेल्प यू टू सेव योर टाइम एक्चुअली, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आप एलिमिनेट ना करें, कंफ्यूज हो जाएं, फिर आप बस उसमें ही रहें उसी क्वेश्चन में। ठीक है? सो ट्राई टू डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ओके, द वोकेबलरी क्वेश्चन। ठीक है, मनीष। सो मनीष कह रहे हैं कि अगर हमें वोकेबलरी क्वेश्चंस जो लाइक हैं उसमें अगर आंसर्स में वोकेबलरी समझना है तो फिर क्या करें? वो मैं आपको बताती हूँ आगे क्वेश्चंस में कि उसमें क्या करेंगे। ओके, और वोकेबलरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो आपने हर रोज याद करनी है। चलिए हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अगर ये स्ट्रैटेजीज क्लियर हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाती हूँ और फिर आप जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है वो खुद करेंगे। ओके, so the first line is saying an award-winning reporter as well as the author of several books, Maria is considered an dash in her field because, unlike the vast majority of present day journalists, her work is characterized by the prose style that readers find highly distinctive, even unique. Okay, so जो मैंने आपको strategies बताई हैं उसको यहाँ पर apply करें. Who can apply this? So find contextual clues here. Synonyms देखें और मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सा word fit in हो रहा है.
थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. Look at this. Her work is highly distinctive, unique. It is unlike of the other journalist. So what does it mean? कि उसका काम जो है वो सबसे अलग है. तो कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट इन हो रहा है? Looking at the context. What do you think? Innovator. Okay. Explorer. So I'm getting a lot of answers, but no one is correct, actually. अच्छा, जो लोग कह रहे हैं इनोवेटर. इनोवेटर आपको क्या कॉन्टेक्स्ट में पता चल रहा है कि वो इनोवेशन की तरफ उसका कोई कंसंट्रेशन थी? लाइक उसने कोई चीज जैसे कहते हैं इजाद की हो. डू यू थिंक कि यहाँ पर ये बात हुई है इनोवेशन की, क्रिएशन ऑफ समथिंग? डू यू थिंक? Actually, there is no mention of anything innovated, right? So that is why innovator is not making sense. So उसको हम eliminate कर देंगे. So this is the thing. ये process of elimination है. ठीक है, मैं साथ साथ उसको eliminate भी कर देती. Innovator is out because ये sense ही नहीं बना रहा. अब हम चलते हैं explorer. So अहमद explorer कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं explorer? और जय कुमार, you are also saying this. सो एक्सप्लोरर का मतलब है उसने कोई चीज़ एक्सप्लोर की है. वेट, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन. सो एक्सप्लोर क्या यहाँ पर लग रहा है आपको? कोई चीज़ एक्सप्लोर की है? नो एक्चुअली. जी मैम. लग रहा है, बताएं. जी मैम, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर सेवरल ऑथर के सेवरल बुक्स की बात की गई है और फील्ड की बात की गई है, जर्नलिस्ट की बात की गई है, तो उस हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये एक्सप्लोरर में आती है मेरे ख्याल से. अच्छा, ये आपकी जो लाइक जो आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, वो आप अपने नॉलेज से कर रहे हो कि अगर जर्नलिस्ट होगा तो इनोवेशन की तरफ, लाइक एक्सप्लोरर की तरफ होगा. नो, इस तरह से नहीं आपने देखना. आपने हमेशा सिनोनिम्स देखना है यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जांपल, अनलाइक द अदर जर्नलिस्ट, हर वर्क वाज हाईली डिस्टिंक्टिव, उसका यूनिक वर्क था. सो इसको आपने देखना है. ठीक है. सो ये वाले जो अवार्ड विनिंग है, सेवरल बुक्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सो दे आर नॉट टेलिंग कि एक्सप्लोरर थी वो. ठीक है. सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स जो कि मेंशन है यहाँ पे. ठीक है. एक्टिविस्ट, क्या वो किसी चीज को सपोर्ट कर रही थी यहाँ पर? एक्टिविस्ट यही होता है ना कि कोई मूवमेंट को वो सपोर्ट कर रही है, उसमें एक्टिवली पार्ट ले रही है. नो. सो दैट इज व्हाई ए इज द आंसर. अब ए का मतलब क्या होता है? एनॉमली का मतलब क्या है? किसी को पता है? आई थिंक एनोमली का मतलब मीन्स अकेला ही यहाँ है, मतलब इस तरीके से होता है, मतलब जो मतलब अनजान हो, स्ट्रेंज. Distinctive, yes. So something very different from others. Okay? Different from anyone else, everyone, right? So unique है. So that is the thing जो यहाँ पर mention थी. So synonym, you know. So now you see कि हमने contextual words और clues देखे हैं और फिर उस वजह से हमारा आंसर आया. Okay? Other ones are not making sense at all. Got it? Next question खुद कर लेंगे. अब मुझे right answer चाहिए आप लोगों से, ठीक है? Let's move on to this. अच्छा, क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं? पहले क्वेश्चन को पढ़ें. विच फाइंडिंग, इफ ट्रू, वुड मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट द साइंटिस्ट थ्योरी? कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि साइंटिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करेगा? ओके, सो रीड द पैराग्राफ, फाइंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, contextual clues, and then let me know what is the answer. Here you can also play positive negative, just a clue for you. अब यहाँ पे देखें कि अगर नेगेटिव कॉनोटेशन है तो नेगेटिव वर्ड यूज होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा. ओके, सो अहमद, यू आर सेइंग सी, जय कुमार इज सेइंग सी, अहमद इज सेइंग सी और डी,
And what about others? Okay. So Zara और वजीर कह रहे हैं D. And what about others? Because मुझे सबके आंसर्स चाहिए, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए. अच्छा, चेतन आपका नाम है, राइट? Rehber D, Naeem is saying B. Okay, so no one is actually saying A. So A को तो मैं क्रॉस आउट कर सकती हूँ, राइट? ठीक है चेतन. राइट. अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर बात क्या हो रही थी. कोई मुझे जल्दी से वॉइस नोट, सॉरी वॉइस नोट नहीं, व्हाट्सएप यूज करके वॉइस नोट ही मुझे समझ आ रही है. ओके, सो कोई मुझे माइक पे बता सकता है कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? जी वजीर, आपका माइक ऑन है. जी मैम, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बटरफ्लाइज है उसको यूजुअली पेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लार्वल स्टेज पे वो क्रॉप्स और ट्रीज को डैमेज करती है, तो यहाँ नेगेटिव रोल. यस, वेरी गुड. तो यहाँ पर आप देखें harmful, right? Damage. So this paragraph is giving the negative connotation, right? तो अगर negative connotation है तो इसका मतलब है कि जो word use होगा वो भी क्या होगा? Negative connotation का. So significant is not a negative word. Beneficial is not a negative word. तो ये तो cross out हो गया. ठीक है, अगर detrimental का मतलब नहीं पता तो बाकी 3 को आप यूज कर लें. एक्सेप्शनल का तो पता है ना आपको, राइट? बेनिफिशियल का भी पता है, सिग्निफिकेंट का भी पता है. ठीक है, सो उनको देखें, नहीं सेंस बना रहा तो क्रॉस आउट कर दें और डी इज मेकिंग सेंस. ठीक है, डेट्रीमेंटल का मतलब यही होता है कि वो बुरा है, डैमेज कॉज करता है. अहमद आपका माइक ऑन नहीं हो रहा. वेट, अब आप देखें, अब हो रहा है या नहीं? ओके, मे बी प्रॉब्लम एट योर एंड. उसको फिर आप बाद में देख लें. ठीक है, so you can take part by giving your answer in the chat box. Right, let's move on to this. इस क्वेश्चन को ट्राई करें. ओके, वेरी गुड. बट ऐसा तो नहीं हो रहा कि पहले ने अगर लिखा बी तो सबने कहा बी. आई होप कि ये नहीं हो रहा. ठीक है, सो कोई मुझे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं. एनीवन? Why it is B? Actually, you all are right. B is the right option. मैम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो बात की जा रही है, तो रजिस्ट्रेशन वर्ड से ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि मतलब कोई ना कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, स्टोर हो रही है. रजिस्टर मतलब करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मतलब रिकॉर्ड करते हैं जो भी डेटा होती है. तो उस हवाले से रिकॉर्डिंग भी मतलब हो रहा है, प्रिपेयरिंग हो ही नहीं रहा है. रजिस्टर और प्रिपेयरिंग में दिन रात का फर्क है. स्क्राइबिंग भी नहीं हो रहा और ट्रांसमिटिंग भी मतलब नहीं लग रहा है. तो इसलिए रिकॉर्डिंग मतलब सही रहेगा. ठीक है, वेरी गुड. यस, अब जय कुमार, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ना यूज करें, राइट? अगर लाइक उसको टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो यहाँ पर देखें,
कि अगर आपने इंस्क्राइबिंग देख लिया, ट्रांसमिटिंग देख लिया, प्रिपेयरिंग देख लिया, अगर सेंस नहीं बना रहे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज किया, तो फिर आपने इजीली राइट आंसर को पिक कर लिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई रेकमेंड कि आप हमेशा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करें। ओके, सो वेरी गुड। सो रिकॉर्डिंग इज द राइट आंसर। एनीवन हु इज स्टिल कंफ्यूज? और यहाँ पर आप देखिए कॉन्टेक्स्ट भी आपको यही चीज बता रहा है कि किस तरह से ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं, रजिस्टर होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे भी। ओके, सो vocabulary questions अब आप कर लेंगे बिकॉज आई विल बी गिविंग यू होमवर्क ऑन दिस, लाइक आपकी पूरी एक्सरसाइजेज होंगी। सो यही स्ट्रैटेजीज आपने अप्लाई करनी है, नथिंग मोर देन दैट, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट टू द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग पिक्चर क्वेश्चन। सो बिग पिक्चर क्वेश्चन का क्या मतलब है? दैट यू आर लुकिंग एट द बिगर थीम्स, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मेन आइडिया क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, समरी ऑफ द पैसेज भी हो सकता है, या समरी ऑफ द पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपकी आ सकती हैं। नाउ लुक एट दिस, कि आपका जो करेक्ट आंसर है ऑफ मेन आइडिया क्वेश्चंस, दिस विल ऑलवेज रेफर टू योर टॉपिक। हमेशा आपके जो आंसर्स हैं, आंसर चॉइसेस, दैट विल रेफर टू द टॉपिक। अगर कोई ऐसा आंसर है जो कि ऑफ टॉपिक है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। आपका जो आंसर है वो वेग होगा। वेग का क्या मतलब होता है? कि ब्रॉड है, वो एक पूरी पिक्चर को एक सेंटेंस में कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आंसर आपको स्पेसिफिक मिल रहा है कि एक वर्ड को उठा के उन्होंने अगर ऑप्शन में लिख दिया है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। बिकॉज आपके बिग पिक्चर क्वेश्चन जो है उनका आंसर हमेशा ब्रॉड टर्म्स में होगा, वेग टर्म्स में होगा। और कभी कभी ये भी होता है कि आपके जो आंसर्स है उनमें पैराग्राफ के सेम आइडिया पैराग्राफ से लिया हुआ है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो सिनोनिम्स यूज हुए होते हैं उसमें। सो अगेन इट इज रेफरिंग टू योर पैराग्राफ, सेम आइडिया है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अच्छा, डिजिटल एसिटी में एक और चीज उन्होंने इंक्लूड किया है कि वो आपको पोम्स अब दे रहे हैं, ठीक है। सो पोम्स में आपने क्या करना होता है, यू हैव टू सी कि जो सेंट्रल आइडिया है वो आपका किस तरह से उन्होंने मेंशन किया है। सो आप एक पोम की ओवरऑल पिक्चर लेंगे, लाइक उसको ओवरऑल समझेंगे कि वो क्या क्या कह रहे हैं, और फिर आप उनके ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन इन एनी पॉइंट, बिकॉज यही आपके ब्रॉड पिक्चर क्वेश्चन की टेक्निक्स हैं। कोई समझ नहीं आई किसी बात की तो पूछते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। जी रहबर। अच्छा मैम, आपने जो क्वेश्चंस हमें दिए थे यहाँ पे, कल जो टेस्ट में दिए थे और आज भी जो दे रहे हैं आप, तो वो जो हमारे एलकेट में जो हम दिए थे उससे कुछ डिफरेंट नहीं है? आपने तो जस्ट डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन को ही जो पैराग्राफ है डायरेक्ट पिकअप कर लिया है, जबकि हमें तो ओवरऑल पैराग्राफ है लेंथ वाइज, जबकि आपने स्पेसिफिक हमें पैराग्राफ दे रही है। तो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे या पैराग्राफ आएगा लॉन्ग? अच्छा, सो फर्स्ट में मैंने आपको ये चीज कही है कि आपने अभी पैटर्न को नहीं देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रैटेजीज को देखेंगे कि किस तरह से करना है आपने, ठीक है। अब जैसे वोकेबलरी क्वेश्चंस है ना, अगर आपको पूरे पैसेज की भी समझ नहीं आई ना, तो वो आपके सराउंडिंग सेंटेंसेस जो है उससे से आपका आंसर हो जाएगा। अब बिग पिक्चर क्वेश्चन जिससे आप कह रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बल्कि, ओ सॉरी आंसर ना आपको नजर आ जाए, ठीक है। मैं आपको अभी लेकर चलूंगी उन क्वेश्चंस पे, ठीक है। उसमें हम बिग पिक्चर भी देखेंगे, लाइक फुल पैराग्राफ पैसेजेस, ठीक है। अच्छा, सो एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? सो यहाँ पर आपको समझ आ गई है सबको स्ट्रैटेजीज की? अगर समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, विच चॉइस बेस्ट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आपने मेन
आइडिया देखने ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ पे जाएं, इसको रीड करें, इसका मेन आइडिया या मेन थीम जो है वो आइडेंटिफाई करें और फिर ऑप्शंस को देखें। Okay, so I've got one answer. What about others? Take 1 minute, 1-2 minutes, and try this question. Okay, what about other students? Right. So everyone is saying A. Jay Kumar, you are saying C. Okay, जो लोग A कह रहे हैं वो मुझे बताएं कि why do you think it is A? Who will tell me? जिसने पहले participate नहीं किया। Anyone? Unique qualities, right? अच्छा, इसमें हम देखें यहाँ पर तो क्या मेंशन है कि ये जो पर्सन था OR में इसको कह रही हूँ, she was among Japan's most celebrated artist। ठीक है, वो राइटर भी थी, इंस्क्राइब करती थी अपने पोम्स को इन ऑन टू क्ले वेसल्स। ठीक है, और डिस्टिंक्टिव ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट फॉर्म करती थी एंड इट वाज नॉट रेप्लिकेटेड बाय अदर आर्टिस्ट। ठीक है, उसका जो वर्क था वो ग्रेट डिमांड में था और फिर उसके बारे में यहाँ पर पॉजिटिव थिंग्स बताएंगे। ठीक है, सो अगर हम ब्रॉड पिक्चर इसकी लें तो देयर इज समथिंग पॉजिटिव अबाउट OR। ठीक है, सो इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताई हुई हैं। अगर हम ऑप्शंस में देखें सो वी शुड गेट टू द राइट ऑप्शन इफ वी आर लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्सन, राइट। अब यहाँ पर अगर हम ए को देखते हैं तो क्या मेंशन है कि उसकी यूनिक शी वाज प्राइज्ड फॉर हर यूनिक क्वालिटी, राइट। उसकी जो क्रिएशन थी दे वर प्राइज्ड फॉर देयर यूनिक क्वालिटीज। सो एक्चुअल में पैसेज में भी यही बात हुई थी कि उसकी यूनिक क्वालिटीज थी। अब बी को आप देखें, वाई बी इज नॉट राइट और सी बी क्यों ठीक नहीं है और डी बी क्यों ठीक नहीं है। ए इज द राइट ऑप्शन। गुड एवरीवन, हु विल टेल मी वाई बी इज इनकरेक्ट? क्योंकि मैम यहाँ पे ट्रेडिशन की बात की गई है। ट्रेडिशन ब्लेंड करता है इम्पोर्टेंट रोल जापानी आर्ट में। ओके, ठीक है। सो ट्रेडिशनली की यहाँ पर बात उन्होंने नहीं की थी। और नेक्स्ट आप देखें कोलैबोरेशन, क्या कोलैबोरेशन यहाँ पर हुई थी वो डिस्टिंक्टिव थी? नो, एक्चुअली वी आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन द ऑन वन पर्सन
और यहाँ पर दोनों की बात हुई है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट द मेन थीम, क्योंकि ये बिग पिक्चर क्वेश्चन है, ओवरऑल हम पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। एनी कंफ्यूजन? अगर एक्सप्लेनेशन में आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन है या क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, ऑप्शंस की समझ नहीं आ रही, तो मेरे से पूछें। इफ इट इज क्लियर देन गुड। Okay, again, it is a question of main idea. So read this paragraph and then tell me what is the right option. अच्छा, और आप लोग अपने आंसर जो दे रहे हैं वो मुझे प्राइवेट चैट में दें। ओके, अब्दुल्ला खान, आपका आंसर नहीं आया। 2023, आपका आंसर नहीं है। ज़ारा, आपका नहीं है। रहबर, नईम, ओके, so the right answer is, या मैं ये बताऊं कि किसका आंसर ठीक है? आई थिंक लेट्स टेल कि किसका आंसर ठीक है। So Naeem, good, your answer is right. And Jamshed, Zulfikar and Jay Kumar. So good. So your answer is right. अच्छा, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें और जिनके सही हैं वो भी देखें। तो यहाँ पर मेन आइडिया आपको क्या बताया जा रहा है? जब आपने ये पूरा पैराग्राफ रीड किया है, सो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग बताया हुआ है। Kente has evolved into a symbol of many meanings, right? तो यहाँ पर आपको उन्होंने बताया कि उसने इवॉल्व किया इनटू सिंबल ऑफ मैनी मीनिंग्स, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, ठीक है, और बाकी ये सब कुछ बताया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ बात की रॉज, दो ही नोट्स हिज ओरिजिन इज गाना स्ट्रिप वोवन क्लोथ, बट रॉज सेज Kante appears just as widely today in Western style, tailored clothing and many other ways that make it the most recognizably African textile. So यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? यहाँ देखें, many meanings में वो evolve हुआ है, ठीक है, it appears just as widely today और recognizable है, right? So which option is actually encapsulating this idea? क्या वो ये बता रहे हैं Kanti can only be produced by specialized weavers?
क्या ये बात हुई है कि किससे वो बनना चाहिए, किससे वो बनता है? नो। ठीक है, सो ए इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज यहाँ पर जो आपकी वर्डिंग है स्पेशलाइज से बनता है, ओनली बी प्रोड्यूस, नो, इट इज एक्चुअली नॉट द मेन आइडिया, ओवरऑल पिक्चर। ठीक है, वी आर कंसर्न विद द ओवरऑल पिक्चर, सो इट इज एक्चुअली नॉट गिविंग यू द ओवरऑल आइडिया। सो इसको हम आउट कर देंगे, इसको देखें और इसको देखें। कंट्रोवर्शियल, अच्छा कहीं पर बात हुई है कि कंट्रोवर्शियल है? अगर कंट्रोवर्शियल है तो क्या वो पूरे पैसेज का मेन आइडिया ये है कि उसकी कंट्रोवर्सी पे हम बात करें? व्हाट डू यू थिंक? Actually, it is not the main theme of this paragraph. Okay, Reber, you got it? Because you said in the end that it is controversial. Okay, if we look at option D में देखें, it has acquired a wide range of association. क्या पूरे पैराग्राफ का यही पर्पस नहीं था कि वो एसोसिएशन बता रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ, किस तरह से इवॉल्व करता है वो मैनी मीनिंग्स में? ठीक है, वाइडली यूज होता है और रिकग्नाइजेबल है। ठीक है, सो वाइड रेंज ऑफ एसोसिएशन को ही उन्होंने यहाँ पर फुल पैराग्राफ में आपको टारगेट करने की कोशिश की थी। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? अगर किसी ऑप्शन में आपको लग रहा है कि दिस इज सीमिंग करेक्ट बट व्हाई इट हैज बीन एलिमिनेटेड, सो मुझे बताएं। क्लियर है? So what is the takeaway from this question? कि again आपने overall picture को देखना है और उसी ऑप्शन को देखना है जो वेग है, मतलब वो स्पेसिफिकली किसी पॉइंट को टारगेट नहीं करी। ओके, so this is the major takeaway from this question. Okay, let's look at this. अब यहाँ पर आपने मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट देखना है। अब टेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर आपको पोम गिवन है। सो अगेन लुक एट कि इसका मेन आइडिया, बिग पिक्चर आइडिया क्या है, और फिर उसको मेंशन आप करें ऑप्शन में। सो रीड दिस। Okay, so I'm getting answers. But before this, who can tell me that what is the main idea of this passage or paragraph without looking at the option? So what is that? Who can tell me? So पहले देखें, प्रिडिक्ट करें खुद से, ओके, फिर उसको मैच करें। जी मैम, इसमें जो मेन आइडिया मुझे लग रहा है रीडिंग करने के बाद वो ये है कि यहाँ पे ये मतलब जो ऑथर है वो मेनली स्टोरी जो वगैरह लिखता है वो मतलब एक ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में, ब्यूटीफुल मतलब आदमियों के बारे में लिखता है, और ब्रेव मतलब उनकी अट्रैक्शन और उनकी मतलब ब्यूटी को शो करता है, मतलब उसमें अच्छाई क्या है, मतलब उसकी मतलब उसमें कौन सी एबिलिटीज है वो ठीक उसमें है, शो करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ब्रेव हो गया, फेसेस लाइक ग्रेसेस, ये वाले जो वर्ड यूज कर रहा है, विनिंग वेज, माइंड्स रीड करना, ये वाली जो चीज ठीक है, कर रहा है, मतलब ये लोगों को अट्रैक्शन, लोगों के अट्रैक्शन को खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब लोगों को अट्रैक्शन पे लिखने की कोशिश कर रहा है। ओके, ठीक है। सो अजय कुमार, आपने जो आंसर मुझे दिए वो लाइक पार्शली आपका आंसर है, लाइक पार्शियल आपने मुझे बताया है। ठीक है, एक जो मेजर इसमें पॉइंट था वो मनीष ने मुझे सेंड किया है इन द डायरेक्ट मैसेज। सो दैट इज कि लुक्स डज नॉट मैटर और people can't be judged by their inner
सॉरी कैन बी जज बाय देयर इनर ब्यूटी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ही द राइटर वुड लव टू राइट ऑफ द ब्यूटीफुल, ठीक है, उसके बारे में भी लिखेगा, ब्रेव के बारे में भी, और माइंड रीड करना भी उसको पसंद है, ठीक है, और वो भी लिखेगा, विनिंग वेज भी बारे में बताएगा, बट ही विल नॉट जज द ब्यूटीफुल बाय द ब्यूटी ऑफ द फेस एंड जो वो प्रिटेंड करें, ठीक है। सो इसमें वो ये बता रहे हैं कि वो जज नहीं करेगा उसकी जो आउटर ब्यूटी है या उनकी जो चीजें प्रिटेंड वो करें, ठीक है। सो अहमद ने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो लिटरली एक्चुअली में यही बताया हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने इस आइडिया को कैप्चर किया है, ठीक है। सो उसकी जो अपेरेंस है, जो आउटर ब्यूटी है, उसको वो कंसर्न नहीं है उसके बारे में, ठीक है। सो दिस इज द मेन आइडिया एक्चुअली, कि वो इन सब चीजों के बारे में लिखते हैं, बट वो he will not judge the beautiful by the outer look, ठीक है। So which option is making sense now? अब मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है, so look at the options again and tell me. Good. So D is the right option, ठीक है। A में देखें, the speaker is drawn to people who are attractive and graceful. तो यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं हुई कि वो किस लाइक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और लाइक जो ग्रेसफुल है, अट्रैक्टिव है, उनकी तरफ नहीं। ओके, सो ये मेन आइडिया था। और नेक्स्ट देखें, द स्पीकर डज नॉट फील सूटेड टू द टास्क ऑफ जजिंग अदर्स। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सूट उसको लाइक वो फील करता था सूटेड टू द टास्क ऑफ जजिंग और नॉट, ठीक है। सो उसकी इनर सेल्फ के बारे में हमें नहीं बताया, ठीक है। और थर्ड में देखें, द स्पीकर बिलीव्स दैट एक्सटर्नल फीचर्स आर अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इंटरनल। नो, उसने ये नहीं बताया कि वो अगर आप एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं वो आपको इंटरनल फीचर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो नथिंग इज एक्सप्लेन इन दिस वे। सो डी इज राइट बिकॉज ही इज अनकंसर्न विद सुपरफिशियल अपीयरेंस, जो जाहिरी खूबसूरती है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ओके, सो दिस वाज द मेन आइडिया। एनी कंफ्यूजन, एनीवन? ओके, अच्छा, इसको आप ट्राई करें। ये थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज है, तो रेबर कह रहे थे कि हमें उस तरह के क्वेश्चंस भी दें, सो हियर वी गो। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज है, इसको ट्राई करें। ओके, डन एवरीवन।
So I've got one answer. What about others? So confusion, I think, in the air. Some people are confused between two options. Some are saying think so. So you're not certain on this. So let's see. अच्छा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल है because I've got different answers. So one person is right. So रहबर आपका आंसर ठीक है. And others, your answer is incorrect. Okay. No worries, इसको हम देखते हैं. अच्छा इसमें आपने अगेन प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज बताना है. ठीक है. अब प्राइमरी पर्पस अगेन वेग होगा, ब्रॉड होगा. अब आपने पूरा पैसेज जो ये पढ़ा है, कौन मुझे 1 और 2 लाइन्स में बता सकता है कि हो क्या रहा था इसमें? देयर वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? पहले उन्होंने आपको बताया कि इफ इट इज ओके टू बी अ ल्यूडाइट, इसका मतलब क्या है? समवन हु अपोजेस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ठीक है, जो टेक्नोलॉजी को अपोज करे, उसके अगेंस्ट है. ठीक है, फिर वो कहते हैं अ बेटर क्वेश्चन टुडे इज वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल भी है कि कोई अपोज करे टेक्नोलॉजी को? टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर और इट इज डिफिकल्ट टू resist it, right? Luddite invents machine to destroy technology quicker because obviously वो उनके अगर against है तो वो destroy करेंगे टेक्नोलॉजी को. ठीक है. Like all good satire, the mock headline comes perilously close to the truth. Modern Luddite do indeed invent machines. अब यहाँ आप देखें थोड़ा सा opposite हो जा रहे हैं कि वो invent करते हैं machines को in the form of computer viruses, साइबर बॉम्ब्स एंड अदर वेलवेयर. ठीक है, अब ये उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये वाली चीजें कर सकते हैं, ये वाली. ठीक है, इस तरह की इन्वेंशन वो करते हैं. उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उसके ऑपोजिट लिखा है, बट डिस्पाइट देयर मॉडर्न रेपुटेशन द ओरिजिनल ल्यूडाइट्स वर नाइदर अपोज्ड टू टेक्नोलॉजी नॉट इनेप्ट एट यूजिंग इट. अब यहाँ पर आप देखिए, पहले वो बता रहे हैं कि वो उनके अगेंस्ट हैं, और फिर वो बता रहे हैं कि नाउ कि जो उसकी मॉडर्न रेपुटेशन है उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो ओरिजिनल ड्यूडाइट्स वर नाइदर अपोज टू टेक्नोलॉजी. लाइक उसको निगेट करे, वो उसके अगेंस्ट बात करे कि मॉडर्न रेपुटेशन तो ये है कि वो उसको अपोज करे टेक्नोलॉजी को. ठीक है, लेकिन ओरिजिनल ड्यूडाइट्स वर नेवर अपोज टू टेक्नोलॉजी. ठीक है, वो स्किल्ड मशीन ऑपरेटर्स थे और वो किस तरह से काम करते थे मशीनरी को और टेक्नोलॉजी को लेकर. ठीक है, तो मेनली यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, एक आपको मॉडर्न रेपुटेशन के बारे में बताया है और फिर आपको उन्होंने एक्चुअल रेपुटेशन जो कि ओरिजिनल थी उसके बारे में बताया. ठीक है, सो नाउ यू सी कि यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक है. अब मुझे बताइए, मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी है. जनरल आइडिया इसमें देखें क्या था जो मैंने आपको बताया. क्या वो मेनली ये बताना चाह रहे थे कि परसेप्शन ऑफ द ल्यूडाइट हैज चेंज ओवर टाइम? Was it the main idea? और were they pointing out कि जो मॉडर्न रेपुटेशन है वो बेस करती है मिसकॉन्सेप्शन पे? ये दोनों बहुत क्लोज है एक्चुअली, ए और डी. बी और सी को आप निकाल दें बिकॉज ये दोनों तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे, क्योंकि ये आपका ब्रॉड आइडिया नहीं है. ठीक है, क्योंकि ना ही उन्होंने एम्फेसाइज किया था डिस्ट्रक्टिव नेचर को और ना ही उन्होंने बताया कि डिस्क्राइब सम ऑफ द मशीन इन्वेंटेड. लाइक इट वाज नॉट द मेन आइडिया. ठीक है, ये बात हुई थी बट इट इज जस्ट अ स्पेसिफिक पॉइंट, नॉट द मेन आइडिया, नॉट द ब्रॉड आइडिया. ओके, ए और डी में बताएं. नाउ पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर. गुड. सो ए इज द राइट ऑप्शन. ओके, अब यहां पर आप देखें ये जो आपके वर्ड्स है ना कि मॉडर्न रेपुटेशन इज बेस्ड ऑन अ मिसकंसेप्शन. सो एक्चुअल में पूरा पैराग्राफ आपको दिया ही इसी था.
so that they tell you about this thing. इससे नहीं दिया था कि परसेप्शन जो है वो चेंज हो रही है टाइमली. ओके, मॉडर्न को सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा कनेक्ट किया ओरिजिनल के साथ, पर इज नॉट कि वो किस तरह से हमेशा लाइक चेंज हो रही है विद द टाइम. नो, ठीक है. ओवर टाइम अगर होता तो वो आपको हर फिर टाइम का बताते हैं कि पहले ये था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ. ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ. सिर्फ उन्होंने ये बताना था आपको कि किस तरह मॉडर्न रेपुटेशन जो है वो बेस करती है मिसकंसेप्शन पे. दिस इज द वेग आइडिया. ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक भी है मिसकंसेप्शन पे और वेग भी है, क्योंकि वो ओवरऑल पिक्चर को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं. ठीक है, गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? अहमद, आपको क्लियर है? अब आप कह रहे थे हाउ. ओके, सो ये देखिए यहाँ पर मैंने मेन आइडिया लिखा हुआ है. The Luddites weren't opposed to technology. Their modern reputation is wrong. So this is the main idea. ठीक है, so हम मेन आइडिया को इस तरह से इनकैप्सुलेट करेंगे. So do you guys want a break? We will be taking a 5 minutes break if you want. Otherwise, we can continue. फिर हमारे 2 टॉपिक्स रह जाएंगे और फिर हम उसको ब्रेक के बाद करेंगे. So let's have a 5 minutes break. Okay. तो सब मीटिंग में ही रहेंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे एट 5:17. Okay.
ओके, वेलकम बैक। ठीक है, सब फ्रेश हो गए होंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ। Okay, so let's move on to our third topic. So that is of text completion. So you may not see these type of question on LCAT, but again, LCAT का pattern इतना clear नहीं होता. So they can give you these questions, but on digital SAT you have these type of questions. ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं मैं आपको पहले दिखा देती हूँ और फिर हम इस पे मूव करते हैं. So these are the questions for text completion. Okay? So text completion का मतलब क्या है कि अगर आपको उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, so लास्ट पे अगर वो आपको एक ब्लैंक लाइन दे रहे हैं, तो you have to make sure that आप इसमें ऐसा ऑप्शन फिट इन करें जो इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ऑफ रहबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहबर की सारी इंफॉर्मेशन दे दूँ और लास्ट लाइन पे मैं आपसे कहूँ कि एक और पर्सन की मैं आपको एग्जाम्पल लाइक कोई दे दूँ, अहमद के बारे में यहाँ पर एक लाइन बता दूँ, सो डू यू थिंक दैट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट? यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सारी रहबर की दी और लास्ट में मैंने अहमद की एक बात कर दी. डू यू थिंक इट इज फाइन? Or do you think it is off topic? It is not fine, right? ठीक है, अगर मैं एक पर्सन की या एक आइडिया की बात कर रही हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक, सो लास्ट पे अगर मुझे उसको एंड करना है तो ऑफ कोर्स आई हैव टू कनेक्ट इट बैक टू द ओरिजिनल पैराग्राफ, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ऑफ टॉपिक, सेंस नहीं बनाएगा. सो सेम इज द थिंग हियर. यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है तो कंटेंट को समझें पहले, मेन आइडिया क्या है, और फिर उसको लॉजिकली आपने कंप्लीट करना है. ठीक है? सो उसके लिए यहाँ पर देखें कुछ टिप्स हैं. सो एवरी टाइम व्हेन यू रीड द पैराग्राफ, तो उसको आपने देख के आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस होल पैराग्राफ. ओके, सो राइट दिस कि टेक्स्ट कंप्लीशन में आपने हमेशा गिवन पैराग्राफ का मेन आइडिया डिसाइफर करना है. ठीक है? और ये आपको किस तरह से पता चलेगा? कोई आपको स्पेसिफिक वर्डिंग होगी, वो आपको बताएगी कि यहाँ पर क्या आइडिया है. और फिर जब आपने उसका मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको रीस्टेट कर दें. ठीक है? सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया और इसको फिर आपने रीस्टेट करना है, मतलब आप उसको लिख लें कि दिस इज द मेन आइडिया. अब ये नहीं करना 2 to 3 लाइन्स में मेन आइडिया लिख रहे हैं, नो, जस्ट राइट द मेन आइडिया इन 2 to 3 वर्ड्स. ठीक है? और फिर आपने ऑप्शंस को देखना है लास्ट पे और फिर आपने मैच करना है विद द मेन आइडिया. गॉट इट? सो व्हाट इज द टेक्निक? फर्स्ट यू रीड द पैराग्राफ, यू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. मेन आइडिया समझ आ गया, रीस्टेट कर दें, उसको मेंशन कर दें और फिर आपने ऑप्शंस को देखना है. गॉट इट? ठीक है? अच्छा, this point, let's look at second point. The key information will appear very close to the blank. अब यहाँ पर देखें जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, अब यहाँ पर जो लास्ट पे सेट इन होगी इंफॉर्मेशन, दिस शुड बी इन वेरी क्लोज कनेक्शन विद दिस पार्ट, यहाँ से लेकर अकॉर्डिंग से लेकर कलर्स तक. ठीक है? उसके साथ उसका कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा. तो आपने एक ये भी चीज देखनी है कि इससे पहले जो बात हो रही है उसके साथ क्या इसका कनेक्शन बन रहा है, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर आप एक इंफॉर्मेशन डाल दें जो पैराग्राफ से तो रिलेटेड है मगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है. ठीक है? सो जो उससे पहले कुछ लाइंस हैं उनको भी आपने
देखना है कि what it is actually saying. ठीक है? ठीक है? Any confusion? Oh, sorry. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, इसको देखिए कौन सी आंसर सेंस बना रहे हैं. First of all, read the paragraph, state the main idea, and then match the options. Okay, who can tell me what is the main idea? अच्छा, कौन annotate करे on the screen? अच्छा, बच्चे इस तरह ना करें because फिर ये होगा कि बाकी स्टूडेंट्स देखेंगे और फिर उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है? So try to give your answer in the direct message part. Okay? जी, कौन समझाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है? तो व्हाट इज द मेन आइडिया हियर? मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. तो यहाँ पर क्या बात हुई थी कि रीगल एंजल फिश फ्लैश कर दिया आई पॉपिंग बैंड्स ऑफ येलो, वायलेट एंड वाइट. ठीक है? सो कुछ कुछ बैंड्स हैं जैसे येलो, वायलेट एंड वाइट, उनको वो फ्लैश करती है. ठीक है? मतलब दिखाती है. बट रीसेंट स्टडी, अब ये जो वर्ड है वो काफी स्ट्रांग है. ठीक है? कि जो रीसेंट स्टडीज हैं वो शो करती है कि एज रीगल्स swim against a coral reef's visually complex background, their contrasting lines merge into the predator's brain. अब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं, उस आइडिया को निगेट कर रहे हैं कि जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये शो कर रही हैं कि जब ये एंजल फिश स्विम करती है अगेंस्ट कोरल रीफ बैकग्राउंड, तो जो इनके कॉन्ट्रास्टिंग लाइंस जो हैं वो मर्ज हो जाती है इन द प्रेडेटर्स ब्रेन. प्रेडेटर कौन होते हैं? जो प्रे के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं. ठीक है? जिनको कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल. ओके? अब यहाँ पर अगर लाइंस मर्ज करें प्रेडेटर के ब्रेन में तो फिर कैप्चर नहीं होगा ऑफ द प्रे. सो दिस इज द मेन आइडिया है. ठीक है? और फिर उन्होंने एक बायोलॉजिस्ट की बात की है. As the reef fish retreats, distance and motion can make it difficult for predators to perceive fine details and distinguish closely spaced outlines of contrasting colors. Again, उन्होंने यहाँ पर जो बात की है वो यही की है कि जो कैप्चर है वो इवेड हो जाता है. मतलब जो लाइंस हैं वो मर्ज हो जाती हैं जब,
तो डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, प्रेडेटर्स के लिए। तो वो प्रेडेटर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कलर्स को, और फिर क्या होता है कि कैप्चर नहीं होता प्रे, ठीक है। तो दिस इज द मेन आइडिया कि किस तरह से जो लाइंस मर्ज होती हैं वो कैप्चर को इवेड होने से बचा लेती हैं, ठीक है, कैप्चर को इवेड कर देती है, इन अदर वर्ड्स। गॉट इट? अब मुझे कोई बताए कि अगर मैंने यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है कंप्लीशन के लिए, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो इसको राइटली कंप्लीट कर रहा है? विच ऑप्शन? कहाँ पर बात हो रही है कि मर्ज हो जाती है, लाइंस ब्लर हो जाती है, फिर प्रेडेटर कैप्चर नहीं कर सकता? अब अगर मेन आइडिया को भी कैप्चर कर लें, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन, डू यू थिंक इट्स राइट? वो कह रहे हैं कि ब्राइट कलर्स ऑफ द फिश जो है वो इजीली परसीव हो सकते हैं। डू यू थिंक इट इज राइट और नॉट? ए ऑप्शन। नो। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो आइडिया है उसको निगेट किया जा रहा है, ठीक है, कि वो इजीली परसीव हो जाते हैं। एक्चुअल में हमने पढ़ा ही है कि परसीव नहीं होते, ठीक है, उसके कलर्स जो है। सो दिस इज रॉन्ग। लेट्स लुक एट बी, कि रिलाई उसको करना चाहिए विजुअल एस्पेक्ट्स पर। मस्ट रिलाई, हमेशा रिलाई करना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात हुई है पैराग्राफ में? नो। राइट? सी को देखें और डी को देखें। पहले हम डी को देखते हैं। द फिश अपेयर एज अ सिंगल mass rather than a group of individual creatures. डू यू थिंक कि यहाँ पर मैं इस आइडिया को मेंशन कर दूं तो ये पैराग्राफ लॉजिकल हो जाएगा? नो। राइट? बिकॉज मेन आइडिया से कनेक्शन इसका बन ही नहीं रहा, तो लाइक वी शुडंट बी मेंशनिंग दिस। अगेन आपने देखना है कि ये जो इससे पहले वाली लाइन है, ये वाली अकॉर्डिंग से लेकर अवे तक, उसमें कौन सा आइडिया पर्टिकुलरली मेंशन हुआ है, सो दैट वी कैन एड अ सेंटेंस जो कि इसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है, ठीक है। ये मैं यूज करती हूँ पेन एंड वी कैन, ठीक है। सो आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो लाइन फिट इन हो रही है हेयर, ठीक है, हेयर। सो दिस इज इन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू दिस लाइन, एंड ओवरऑल पैसेज से भी उसका कनेक्शन हो, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दीज पर्टिकुलर लाइन्स। सो डी इज आउट बिकॉज यहाँ पर अगर हम ये ऐड करते हैं, सो इट इज नॉट कनेक्टिंग इट टू द सेंटेंस, ठीक है। सी को देखें कि ये दोनों चीजें ब्लर हो जाती हैं और फिश टू मर्ज इनटू दैट, ठीक है। सो मर्जिंग की ही तो बात की थी यहाँ पर, कि किस तरह से मर्ज होता है, फिर कैप्चर इवेट हो जाता है। ओके, so we connected it with the main idea. Any confusion, anyone? Clear? Okay, so if it is clear, so let's move on to this question. ये आप लोग खुद बताएंगे और फिर I'll see कि कितना आपको समझ आया। Okay, try this one. पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, मेन आइडिया स्टेट करें और फिर इससे कनेक्ट करें जो प्रीवियस सेंटेंसेस।
Okay, so again, I'm getting diverse options. ओके, तो नईम, जमशेद और अब्दुल्ला आपका आंसर ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स, उनका मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक द आंसर इज बी। ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पर आपने पहले ये पढ़ा पैराग्राफ, ठीक है। Who can tell me that what is the main idea of this whole paragraph? Who can tell? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज इसमें टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी सी मुश्किल थी, बट बिकॉज वी आर इन द लर्निंग स्टेज, सो अगर आप इसको सर्च भी कर लें वर्ड्स को, दैट इज टोटली फाइन। ऑल्फैक्शन, इसका मतलब देख लें अगर नहीं पता, ठीक है। ऑल्फैक्शन मीन मैम ये हेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस, हेयरिंग और स्मेल। इट इज हेयरिंग मैम, हेयरिंग सेंस ऑफ हियरिंग। मैम यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेयरिंग और देखने की जो सलाहियत है, ये हम ये साइंटिफिक डिफाइन नहीं कर सके, ये दो चीजें। बाकी बट चीजें okay। ठीक है, बट ऑल्फैक्शन का अगर आप मतलब देखें तो उसका मतलब होता है द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको बात भी की थी स्मेल की भी, ठीक है, तो उसके साथ भी आप देखें। लेकिन अगर नहीं भी समझ आ रहा ऑल्फैक्शन का, तो पैसेज आपको उसके बारे में बता देगा, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे बताएं कि आइडिया क्या था, रहबर अगर आप ही बताएं। जी मैम, ओवरऑल आइडिया ये था कि जो 1/3 ह्यूमंस थे वो क्या कर सकते, विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते थे, विजुअल और सिमल वाले। बाकी जो साइड वाले जो देखने की चीजें और सुनने की चीजें, वो नहीं कर सकते थे प्रोसेस। ये चीजें डिफाइन किया जाता। ओके, आई थिंक सो। ठीक है। अच्छा, गुड अटेम्प्ट। अदर स्टूडेंट, एनीवन एल्स हु कैन टेल मी व्हाट इज द मेन आइडिया? जिन लोगों के आंसर बी हैं वो बताएं, बिकॉज आई वांट टू सी कि किस ग्राउंड पे आपने ये आंसर सिलेक्ट किया है। तो जमशेद, अब्दुल्ला, नईम, आप लोगों में से कोई बता दे व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। अच्छा, कोई और बता दे, बिकॉज आई वांट टू नो कि व्हाट इज द मेन आइडिया, बिकॉज अगर हम ऑप्शन को मैच करेंगे हम मेन आइडिया के साथ करेंगे। सो टेक 2 minutes एंड री रीड इट, और फिर मुझे आपने बताना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, टेक 2 minutes एंड री रीड। यस, गुड। जमशेद का आंसर है पीपल यूजुअली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन स्मेल। यस, अब यहाँ पर देखें कि वोकेबलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अब इस वर्ड का अगर आपको मतलब नहीं पता
तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि वोकेबलरी आप लर्न करें। तो यहाँ पर पहले उन्होंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि 1/3 ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज डिवोटेड टू प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ब्रेन का 1/3 पार्ट जो है वो इस पे डिवोटेड है, और सिर्फ 5% इन्वॉल्व करता है स्मेल को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि एज अ रिजल्ट किस पे फोकस हुआ, ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉसिटी ऑफ लैंग्वेज टू डिस्क्राइब इट। इसका मतलब है कि हमारे पास इतने वर्ड्स नहीं है, मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। और फिर उन्होंने कहा देयर आर काउंटलेस एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स लुक एंड साउंड लाइक, बट ह्यूमंस वोकेबलरी फॉर olfactory perception is fragmentary and highly inconsistent। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको नहीं भी समझ आ रही ना इस वर्ड की, फिर भी आपके पास यहाँ पर काफी ऐसी बातें हैं जो आपको बताएंगी कि इस पूरे पैसेज का मतलब क्या है। ओके, सो अगर आपको ये बात तो समझ आ जाती है ना, ये वाली, तो इसका मतलब आपको पूरा इसका कंटेंट समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी लैंग्वेज की बात हुई है कि वो उसमें इतना लाइक प्रेजेंस नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि वोकेबलरी इनफ नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, फ्रेगमेंटरी है। ओके, तो हमारे पास इतने वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्लेन स्मेल, ठीक है। अब इसके साथ आप मैच करें ऑप्शन को। तो दिस वाज द ब्रॉड आइडिया। इस ब्रॉड आइडिया के साथ अगर मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ सेंटेंस को, तो कौन सा ऑप्शन मुझे वो ऐसा वर्ड सॉरी ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट में देखिए फंडिंग। क्या फंडिंग की बात हुई थी यहाँ पर कुछ भी? नो, इट इज जस्ट ऑफ टॉपिक, इसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। बी देखें, people often can't explain how things smell to them in a way that is comprehensible to researchers। What do you think? सही लग रहा है? जी गाइस बताएं, अभी सोना नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। 2 आवर्स की क्लासेस थोड़ी सी डॉन्टिंग होती हैं, बट देखें पूरा वीक आपने बाकी होमवर्क्स करने हैं, सो क्लास अभी अटेंटिवली ले लें, ठीक है। Okay, so B is making sense or not? And why it is making sense and how it is making sense? Because here we are saying that जो explanation है वो आपकी inconsistent है because vocabulary नहीं है, तो यहाँ पर यही तो बात हुई थी। Okay, so we are matching the option with the content that is already provided. So this is why this is going to be right. C option को देख लें और D को भी देख लें, क्या वो सेंस बना रहे? Must be able to, कहीं पे मेंशन है people should focus on sensations rather than words and they encounter new scent। क्या ये बात हुई थी पैराग्राफ में? No, so one word is actually able to make it incorrect, ठीक है। फंडिंग की बात नहीं हुई थी, न्यू सेंट की बात नहीं हुई थी, must be able to, no, so that is why it is wrong, ठीक है। so this is right। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? No, right, any question, any confusion, any thought, कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। ऑल क्लियर? ठीक है, गुड। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मुझे लगेगा कि आप लोग सो रहे हैं, तो कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं मुझे साथ साथ बताते जाएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। बिकॉज
एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी बिग क्लास, सो जितने स्टूडेंट्स आई वांट कि उन सबको समझ आए, और अगर एक को भी समझ नहीं आएगी तो आई विल पॉज ऑन दैट थिंग एंड आई विल री एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? Okay, so let's come to our last topic for today. That is infographics. Infographics is actually my favorite. इसमें बस आपने ये करना होता है, you just have to read graphs. और graphs हम, जब metric में थे, O levels में थे, हर टाइम हम ग्राफ को तो रीड कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तब भी आपने रीड करना है ग्राफ। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको आनी चाहिए और बहुत ईजी एक्चुअली, ठीक है? सो देयर आर सम टिप्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। There all the information that you need to answer the questions will be right there in front of you. मतलब ये कि अगर आपके पास एक डायग्राम है तो सारी इंफॉर्मेशन उसी में है, ठीक है? आपने अपने आउटसाइड नॉलेज को यूज करके आंसर नहीं देना होता। आपने जो भी आंसर देना है वो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, जो आपके पास ग्राफ है उसी को यूज करके देना है, ठीक है? इसके बाद आपने हमेशा ग्राफ को स्किम करना है। स्किमिंग का ये मतलब है कि आप जब पूरा ग्राफ रीड कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसका टॉपिक देखें, आप उसके एक्सेस देखें कि एक्सेस पे क्या मेंशन है, ओवरऑल ट्रेंड देखें कि ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कोई डिप्स आ रही है उसमें, नहीं आ रही, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिक्वायर करेंगे कि आपका जो कंटेंट है, जो पैसेज में या पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है, उसके साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ग्राफ पे बेस्ड होंगे। ओके, सो कनेक्शन बनाना भी आपको आना चाहिए विद द पैसेज और द पैराग्राफ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले ये करवाती हूँ और फिर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, ठीक है? मैं आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये नहीं मैं करूँगी कि डायरेक्टली मैंने इस डायग्राम को देखना है, नो, फर्स्ट थिंग इज नॉट दिस। हमेशा आपने क्वेश्चन को देखना होता है पहले, ठीक है? विच रीजन इंक्लूडेड इन द ग्राफ शुड दिस स्टूडेंट साइट टू सपोर्ट हिज क्लेम, दिस क्लेम। अब क्लेम हमें नहीं पता क्या क्लेम है, ठीक है? ना ही क्लेम आपको यहाँ से पता चलेगा, तो फिर कहाँ से पता चलेगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने रीजन सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ग्राफ, so we have to make sure that it is supporting the claim, right? तो claim कहाँ पर provided है? जी, at पैराग्राफ last paragraph में, good, ठीक है? So paragraph is something that you have to look at, because अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे नहीं समझ आएगी, क्वेश्चन को देखेंगे नहीं समझ आएगी, so we have to look at the content जो कि हमें बताएगा कि हमने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको पढ़ें, रीड द कंटेंट, इट्स वेरी इजी। कंटेंट में जो क्लेम है वो लास्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। सो टेक 2 minutes एंड रीड द कंटेंट। अभी आंसर ना बताएं, सिर्फ कंटेंट रीड करें।
पढ़ लिया, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा तो यहाँ पर उन्होंने क्या बात की थी कि although many wild bee population have continued to decline, the number of honeybees have actually increased on every continent. ठीक है, so increase हुई है number of honeybees। बेशक wild bees जो है वो कम हुई है, लेकिन honeybees increase हुई है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ देखें, और यही चीज क्वेश्चन में भी थी। ठीक है, कि वो क्लेम को सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आपने म्यूट कर लेंगे, ओके। सो द स्टूडेंट वांट्स टू एम्फसाइज दैट इन सम रीजन्स, ये रीजन्स आपके पास शोन है, हनी बी पॉपुलेशन had not only rebounded by this but also reached their highest level in 60 years। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही इंफॉर्मेशन लेनी है और ग्राफ से कनेक्ट करनी है। कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर हनी बी पॉपुलेशन हैड नॉट ओनली रीबाउंडेड, मतलब वो दोबारा से इंक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हुई है, और वहां पर उसने हाईएस्ट लेवल भी 60 इयर्स में रीच किया है। सो कौन सा ऐसा रीजन है? व्हाट डू यू थिंक? ग्राफ को आप देखें, एशिया, ओके। एशिया में देख लेते हैं, रीबाउंडेड, रीबाउंडेड का मतलब है कि एक दफा गिर के फिर एक बार से इंक्रीज हुई है। तो डू यू थिंक कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये बस तो ऊपर ही जा अमेरिका, रहा है। अफ्रीका और अमेरिका, अमेरिका 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 देखते हैं। अमेरिका की लाइन आप देखें, प्रिटी मच सेम है, ये देखें। कोई और देखें। नहीं, ये जो 20 से स्टार्ट हो रही है, 20 से स्टार्ट हो गई, 2020 पे आके फिर नीचे जा रही है थोड़ी सी। ये वाली, सबसे ऊपर वाली, यस अच्छा यूरोप, यस। यूरोप में देखें, वो आपको कह रहे हैं कि रीबाउंड हुई है, राइट? गिर के एक दफा इंक्रीज हुई है, बट सेकंड पॉइंट इज राइट कि उसने हाईएस्ट लेवल को अचीव किया इन 60 इयर्स। देखें, यहां से लेकर यहां तक देखें, 60 इयर्स में क्या उसने हाईएस्ट अचीव किया। तो सम पीपल आर सेइंग अफ्रीका, अफ्रीका को देखते हैं। यहाँ से इंक्रीज, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया है, और फिर ऊपर गया, राइट? सो रीबाउंड तो हुआ है, ओके, एक दफा गिर के इंक्रीज हुआ है, और रीबाउंड होने के बाद उसने रीच किए अपने हाईएस्ट लेवल पे। सो डू यू थिंक इट इज राइट? क्या सच बात है ये? कि पहले रीबाउंड हुआ और रीबाउंड होने के बाद उसने हाईएस्ट लेवल भी अचीव किया। तो यस, अफ्रीका इज राइट। ठीक है, सो यहाँ पे रीबाउंड हुआ, और रीबाउंड होने के बाद उसने हाईएस्ट लेवल अचीव किया अपना। कैसे पता चला? इसको कंपेयर करें, पहले बहुत कम थी, राइट, फिर इंक्रीज हुई, लेकिन ये पॉइंट हाईएस्ट लेवल पे है अफ्रीका के अंदर। ओके, यूरोप क्यों नहीं ठीक? रीबाउंड तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये इससे कम है। ठीक है, सो हाईएस्ट अचीव उसने नहीं किया, और बाकी जो है वो स्ट्रेट ऑलमोस्ट लाइंस है, और इसमें तो रिबाउंड नहीं हुआ। ठीक है, और अमेरिका के लिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? ओके, so coming to this question, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इज द लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा, रीबाउंड का मतलब होता है कि गिर के दोबारा इंक्रीज होना, ठीक है, सो रीबाउंड करना। तो सब वोकेबलरी जरूर लर्न करें, मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगी ग्रुप में, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। अगेन आपने यहाँ पर क्वेश्चन रीड किया, आपने देखना है व्हाट इज ट्रू अबाउट द नंबर ऑफ राइडर्स हु यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन 1945। डेकेड का क्या मतलब होता है? 10 ईयर्स, राइट? तो अगर ये 45 है तो 55 मतलब यहाँ, राइट? अब इनमें देखें क्या सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो कौन सा ऑप्शन होगा? सो ज़ारा इज राइट, 2023 चेतन इज राइट, और उसके बाद बाकी भी ठीक है। जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया इसमें, बट अब यहाँ पर देखें क्या बी ठीक लग रहा है आपको? इट वॉज वाइडली आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ राइडर्स हु यूज ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 डेकेड्स। क्या पहले सालों से अगर हम कंपेयर करें इनसे, तो क्या इससे वो वाइडली आउट ऑफ प्रपोर्शन है? क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? एक्चुअली नो, बिकॉज इट इज सिमिलर टू व्हाट इज प्रोवाइडेड हेयर, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस है। सो इट इज गुड टू से कि सिमिलर है टू द नंबर ऑफ राइडर्स जो कि डेकेड लेटर थे, ठीक है, सो इनसे वो सिमिलर है, ठीक है। वाइल्डली इज द वर्ड जो इसको रॉन्ग कर रहे हैं। सो रिमेंबर दिस कि एक वर्ड भी आपका पूरा ऑप्शन इनकरेक्ट कर सकता है, ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग टू। एनी कंफ्यूजन, एनीवन? नो, ओके, सो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्किप किया, ये वाला, दिस वन, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, ओके सॉरी, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अगर समझ नहीं आती तो मुझे आप बता दें ग्रुप में, अगर आ जाती वेल एंड गुड, कि हम आपके साथ स्लाइड्स आई थिंक शेयर कर देंगे और आप इसको रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? बिफोर वी एंड, द होमवर्क फॉर योर नेक्स्ट सेक्शन इज कि आपने इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, तो आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट